Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we are going to start a new chapter, which is chapter number 3, Force and Motion. Now, student, before starting the topics of this chapter, I would like to talk about the two states of a body, which is rest and motion, because the whole chapter is totally depends on this two position or two state of matter. The difference between rest and motion, as you know that rest, a body is said to be in rest if its position does not change with respect to a fixed point in its surrounding, and motion, a body is said to be in motion if its position continuously changes with respect to its surrounding change with time. यानी आपके पास जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो हर वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और हर वो बॉडी मोशन में होगी जो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है with respect to its surrounding. For example, a book lying on a table, a bench fixed in a park, a flying bird, a boy playing football. These are the example of rest and motion. Now, if we talk about the uh, motion of body or rest of a body, we talk some we talk about some parameter which is keenly observed in that state of the matter, and these parameter we will discuss in our next slide. The first parameter is displacement. According to the definition, displacement is a vector quantity that refers to how far out of place an object is. It is the object's overall change in position. Displacement is the shortest directed distance between two points. हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को, हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जो हमने पहले डिफाइन की कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि आपके पास ए बी सी, ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, बी से लेके सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और सी से लेके ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. The SI unit of displacement is meter and it's a vector quantity, और ये vector quantity याद रखिएगा. Displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Now here we keenly observe the displacement between 2 points. Suppose that we have a vector r1. It is a vector representation of position vector. A vector r2 which is this one. ठीक है, आपके पास r1 आपके पास ये गिवन है, r2 ये गिवन है. यहाँ r1 और r2 को ri और rf से शो किया गया है. सो r1 आपके पास o से लेके a तक, r2 o से लेके b तक का डिस्टेंस. द डिस्प्लेसमेंट is the vector drawn from initial position A to final position B. So delta R is equals to R2 minus R1. तो आपके पास A से लेके B तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो आपके पास डेल्टा R यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला डेल्टा R is equals to R2 minus R1 से फाइंड हो जाएगा. Now another parameter of the rest or motion, और प्योरली अगर हम बात करें तो ये आपके पास पैरामीटर है मोशन ऑफ अ बॉडी का, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम कितना ट्रेवल किया गया है
वो आपके पास वेलोसिटी कहलाता है। According to the formula of velocity, displacement travel divided by total time taken. Now, if you see in this diagram, you have two vectors r1 and r2. The distance between these two vectors is delta r2 minus r1. Now, from r1 to r2, a body takes some time from t1 to t2, and if we talk about the velocity, then we have taken the displacement and time taken in that motion of a body. So we can write this equation s2 minus s1 और r2 minus r1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे upon t2 minus t1 which is equals to delta s over delta t या delta r over delta t. As displacement is vector quantity, therefore velocity will certainly be a vector. The SI unit of velocity is meter per second. क्योंकि displacement आपके पास एक vector quantity है, similarly जो velocity होगी वो भी आपके पास एक vector quantity के तौर पे यहाँ mention की जाएगी. SI unit of velocity जो है वो आपके पास आ जाता है meter per second. Now the subtopic or subtype of velocity, which is average velocity. Let xi be the position of a car at time ti and xf be its position at time tf. Then in time interval delta t is equals to tf minus ti. The displacement travel is delta x, which is equals to xf minus xi. यानी आपके पास एक कार है जिसकी इनिशियल पोजीशन इनिशियल टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो आपके पास एक्स आई है. सिमिलरली कुछ देर बाद उसकी पोजीशन एक्स एफ हो जाती है इन टाइम टी एफ. तो अकॉर्डिंग टू द definition of average velocity or according to the definition of velocity, we can write delta t is equals to tf minus ti for the time interval, और displacement जो कवर हुई है वो हो जाएगी आपके पास delta x is equals to xf minus xi. Hence, average velocity V average is defined as the net displacement per unit time. तो average velocity आपके पास क्या हो जाएगी? Net displacement per unit time, and we can write this equation delta x over delta t xf minus xi upon tf minus ti. According to this diagram, again I pasted this diagram because this diagram is helpful for velocity or average velocity, so I paste this diagram. Here in this diagram you have two vectors r1 and r2. We consider xi or xf, and the displaced time is ti and tf. So the displacement delta s is equals to or delta x is equals to x2 minus xi या xf minus xi, and delta t is equals to tf minus ti. और जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी. Position versus time graph for the motion of a car with changing velocity. आपके पास चेंजिंग वेलोसिटी के लिहाज से मोशन ऑफ कार को यहाँ पे शो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आपके पास पोजीशन y एक्सिस पे मौजूद है, टाइम x एक्सिस पे मौजूद है. इस कार की पोजीशन दो जगह पे चेंज हो रही है. पहली आपके पास पोजीशन ये नजर आ रही है आपको, इसे हम xi कह लेते हैं. दूसरी पोजीशन आपके पास xf यहाँ नजर आ रही है हमें. जो टाइम इंटरवल इसने चेंज किया है, पहला टाइम इंटरवल t1 और दूसरा आपके पास t2. नाउ एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी को शो कर रहा होगा, यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1. ये एक स्लोप जनरेट करेगा और वो स्लोप आपके पास यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, और ये स्लोप जो है बेसिकली एवरेज वेलोसिटी को मेंशन कर रहा है. Instantaneous velocity, another type of velocity. According to the definition, the magnitude of instantaneous velocity can be read on the car's speedometer. यानी कि आपने देखा होगा अक्सर कार की स्पीड को नोट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस सर्जेंट के पास एक डिवाइस होती है जिसको वो स्पीडोमीटर का नाम देते हैं. ठीक है,
या आपकी गाड़ी के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसे आप स्पीडोमीटर कहते हैं। इस स्पीडोमीटर के अंदर आपके पास जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो मैग्नीट्यूड होता है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, यानी कि आप उस इंस्टेंट के ऊपर जिस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। अगर आप उसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपकी उस इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसको मेंशन कर रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं। The instantaneous velocity is the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास ऐसी वेलोसिटी है जो आप किसी भी ऐसे टाइम के अंदर रिकॉर्ड करें कि जहां पे आप टाइम के डिफरेंस को या इंटरवल ऑफ टाइम को अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस वर्ड आपका निकला है इंस्टेंट, यानी कि एक लम्हा, और एक लम्हे में जो टाइम पीरियड आपके पास होता है हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो ना होने के बराबर है। इसी वजह से यहाँ पर हम उस टाइम पीरियड की लिमिट जो है वो जीरो कंसीडर करते हैं, या हम ये कह लेते हैं कि उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसका टाइम अप्रोच जो है वो जीरो है। इस लिहाज से v इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा s ओवर डेल्टा t के बराबर आ जाती है। Now uniform velocity, another type of velocity. A body is said to have uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time in a particular direction. However, the time interval may be small. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सिंपल सा है, आपके सामने वर्ड से भी जाहिर है कि ऐसी वेलोसिटी जो अपने आप को चेंज नहीं कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी वेलोसिटी जो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट रही हो, इस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है कि एक गाड़ी 5 मील का 5 मील का सफर तय करती है 5 मिनट्स में सेम स्पीड से, फिर अगेन 5 मील का सफर या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 5 मिनट्स में, फिर अगेन 5 मिनट्स में 5 मील कवर करती है और फिर 5 मिनट्स में 5 मील कवर करती है। यानी कि इस टोटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसकी स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो सेम रही है, चाहे टाइम इंटरवल स्मॉल ही क्यों ना हो। For uniform velocity, instantaneous velocity must be equal to average velocity। यानी कि आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं कर रहे होते हैं। Now next parameter of motion is acceleration. According to the definition of acceleration, acceleration is the rate of change of velocity of an object with respect to time. Acceleration are vector quantity in that they have magnitude and direction। एक्सेलरेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, और एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज दैट जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ बर्ड्स फ्लाइंग कर रही हैं। तमाम के तमाम बॉडीज जो है उनकी वेलोसिटी या तो चेंज हो रही है या उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यानी कि पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई, स्पीड अप हुई यानी कि एक्सेलरेट किया इन्होंने, वेलोसिटी स्लो डाउन हुई यानी कि इन्होंने एक्सेलरेट किया है। और अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन बार बार चेंज हो रहा है तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। Now according to the definition, the formula for acceleration change in velocity divided by elapsed time जो भी टाइम इंटरवल है, a is equals to v2 minus v1 divided by t2 minus t1 और a is equals to delta v over delta t। The SI unit of acceleration is a is equals to meter per second square or ms minus 2।
Now the next topic is average acceleration. According to the formula, total change in velocity divided by total time, or A is equals to V over T. Now instantaneous acceleration. The instantaneous acceleration is the average acceleration in the limit as time interval becomes infinitesimally short. A is equals to limit delta t is equals to 0, delta v over delta t, or dv over dt, यानी कि change in velocity with respect to time. अब ये दोनों चीजें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टडी किया था। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम था। यहाँ आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि v ओवर t। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट है एवरेज एक्सेलरेशन की जिसमें टाइम अप्रोचेस टू 0 है कंसीडर किया जाता है। सो a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t, या आप इसको विद रिस्पेक्ट अगर इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखते हैं तो dv ओवर dt के बराबर आ जाता है। Now uniform and variable accelerations. When a body changes its velocity by equal amount in equal interval of time, however these interval may be small. यानी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो अगर कोई बॉडी बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। Deacceleration या retardation. Deacceleration is the opposite of acceleration. It is the rate at which an object slows down. Deacceleration is the final velocity minus the initial velocity with a negative sign in the result because the velocity is dropping. Deacceleration या retardation acceleration की opposite है। यहाँ पर आपके पास, और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पीड स्लो डाउन हो रही है तो वहां पे आपके पास नेगेटिव साइन मेंशन कर दिया जाता है। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और रूल ऑफ थंब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be decreasing. Next topic is positive and negative acceleration. कहाँ आपके पास acceleration पॉजिटिव होगी और कहाँ आपके पास नेगेटिव होगी, इसे इस डायग्राम में शो किया गया है। अगर आपके पास velocity इंक्रीज हो रही है in this direction, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, क्योंकि आप अगर किसी मड के अंदर मौजूद हैं तो आप क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे। वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नेगेटिव वेलोसिटी बट the direction of acceleration will be positive. Similarly, अगर आप डायरेक्शन के लिहाज से देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में आप स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव साइन के साथ आगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा नेगेटिव साइन जस्ट फॉर डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इक्वेशंस जो कि आप यूज करते हैं अपनी डेली फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इससे पहले भी आपने इक्वेशंस को स्टडी किया है, यही इक्वेशंस दोबारा आपके पास सामने मौजूद हैं। ये इक्वेशन रिलेशन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड का। तीन इक्वेशंस हैं आपके पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस
acceleration multiplied by time period. Second equation of motion, s is equals to vit plus half at square, यानी displacement बराबर होता है vit initial velocity multiplied by time period plus half of the acceleration and multiplied by time period का square. और थर्ड इक्वेशन 2as is equals to vf square minus vi square, यानी 2 multiplied by acceleration multiplied by displacement equals to final velocity का square plus initial velocity का square. ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, हम ग्राफिकल एनालाइज करते हैं कि किस तरह से ग्राफ पेपर में हम शो कर सकते हैं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी को, वो यहाँ पे आपके पास शो किया गया है. सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उससे किस तरह के ग्राफ जनरेट होंगे और उससे आप क्या चीज फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले आपके पास ग्राफ यहाँ जो मौजूद है पोजीशन और टाइम पीरियड, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड के दरमियान का ग्राफ. ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है यहाँ किसी किस्म का कोई स्लोप नहीं है. तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की कंडीशन में वेलोसिटी 0 है. यहाँ आपके पास एक स्लोप नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव स्लोप है. ये शो कर रहा है कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. दूसरी तरफ ये स्लोप आपके पास जो कि नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ. इस तरह के स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप का नाम देते हैं. इस तरफ अगर आप देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या पोजीशन ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हुई. इस स्लोप को हम स्लोप ऑफ कर्व स्लोप कहते हैं. और यहाँ हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये एक तरह से एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के मोशन को शो कर रहा है. Now second part, velocity time graph. Here we have a velocity time graph in which we have different slopes which show different quantities with respect to time. यहाँ आपके पास y एक्सिस में वेलोसिटी गिवन है और x एक्सिस में आपके पास टाइम पीरियड गिवन है. इस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं. अगर आप इस पोर्शन को देखें a से b, ये a से b आपके पास एक स्लोप शो कर रहा है और इस स्लोप का मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो किया जा रहा है. सेकंड आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ कहते हैं कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. फ्रॉम सी टू डी आपके पास वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग वैल्यू की तरफ बढ़ गई है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. डी टू ई ये आपके पास 0 के ऊपर शो कर रहा है. इस लाइन को अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि बॉडी यहाँ पे आपके पास रेस्ट की कंडीशन में है. इसने ना वेलोसिटी अटेंड की है और ना ही कोई पोजीशन चेंज हुई है इसकी. नाउ ई टू एफ अगर आप देखें इस पोजीशन को तो इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, यानी कि एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है. और एफ टू जी इसी डायरेक्शन के अंदर कॉन्स्टेंटली एक ही एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी मूव करती हुई आगे बढ़ गई है. और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. आपको पता है कि इन लॉज ऑफ मोशन को आपने पहले भी पढ़ा है. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज बेसिकली 3 लॉज हैं जो कि पूरी हम कह सकते हैं कि जो मोशन है आपका बॉडी का, ये रेस्ट है आपकी बॉडी की स्टेट जो है उसको डिफाइन करना है कि किस तरह से बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है या मोशन से रेस्ट में आ सकती है. कौन कौन से रूल्स आप ऐसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो मोशन में है या रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट की कंडीशन में मौजूद हैं. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपको जैसा कि पता है इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं. अकॉर्डिंग टू द
Definition of Newton's first law of motion. An object will not change its position or its motion unless acted by an unbalanced force. यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या अपने मोशन को स्टॉप नहीं कर सकता या अपनी इस रेस्ट की कंडीशन को मोशन की कंडीशन में नहीं ला सकता तब तक जब तक कि उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यानी कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की पोजीशन को आपने चेंज करना है तो लाजमी सी बात है कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाली एनवायरमेंटल तमाम फोर्सेस से ज़्यादा फोर्स आपकी हो। यानी कि आप अगर उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस से ज़्यादा फोर्स, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी फोर्स उन फोर्सेस से अनबैलेंस हो, तो इस सूरत में आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। If it is at rest, it will stay at rest. If it is in motion, it will remains at the same velocity or same motion until unless you can apply an unbalanced external force on it. Object with greater mass have more inertia. It takes more force to change their motion. यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का जिसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि इस स्मॉल बॉडी के लिए कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इस लार्ज बॉडी के लिए लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, a force applied on a body produces acceleration in its own direction. The acceleration produced varies directly with the applied force and inversely with the mass of the body. Mathematically, it is expressed F is equals to ma. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि आपके पास जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो बॉडी एक एक्सेलरेशन जनरेट करेगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो भी उस बॉडी का मास होगा। जैसा कि यहाँ पे आपके पास इस एनिमेटेड डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी पे। अगर उसने स्मॉल फोर्स अप्लाई की, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्मॉल है। जैसे ही उसने लार्ज फोर्स अप्लाई की, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी और ये जो बॉल है ये जाके हिट कर रहा है अपर डायरेक्शन तक। तो इस सूरत में जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा उसे हम F इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर लिखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ही आगे लेके चलते हैं। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी बॉडी इट विल जनरेट एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि हमारे पास जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी में तो उसमें जनरेट होने वाली एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि दो पर्सन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फोर्स लगा रहे हैं। जो ग्रेटर मास वाला ऑब्जेक्ट है इसकी एक्सेलरेशन कम है क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मास के, और इस स्मॉल मास वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअर मास के। यानी जितना स्मॉल मास होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितना लार्ज मास होगा उतनी ही कम एक्सेलरेशन आपके सामने आएगी। Now the third law of motion, there is always an equal and opposite reaction. हमेशा याद रखिएगा हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपके सामने मौजूद होता है। They always act different bodies as shown in following figure. In order for two forces to neutralize each other, they must act on the same body. जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि उसने उस घोड़े को लात मारी है तो उस घोड़े ने भी उसे लात मारी है। एक छोटी सी डायग्राम आपके लिए, थोड़ी सी फनी डायग्राम आपके लिए यहाँ पे मैंने पेस्ट करी है। Action and reaction always occur in pair. It should be clearly understood that action and reaction forces, though equal in magnitude and opposite in direction, can never neutralize each other. यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल या न्यूट्रलाइज तभी होंगी जब वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होंगी।
This law states for every action there is an equal and opposite reaction. For example, whenever an interaction occurs between two objects, each object exerts the same force on each other, but in opposite direction and for the same length of time. If a body A exerts a force FAB on body B, then the body B exerts a reaction force FBA on A, such that FAB is equals to minus FBA. Here are some examples. बलून गोज अपवर्ड एयर गोज डाउनवर्ड. ये आपके पास एक्शन और रिएक्शन है. अ बॉडी अ बुक लाई ऑन अ सरफेस and weight of the book apply downward, and reaction force of the that surface applied on that book in the upward direction. Recoil of gun, the motion of the bullet is the action, and the recoil of the gun is the reaction of that action. Thank you, students. If you feel any problem or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.